Good afternoon, everyone. I am Dr. Suraj Mohini Jambol. I am the head of the Department of Sociology, PSPS GCW Gandhinagar, Jammu. Today, I have got an opportunity to deliver a lecture on EduSat on a very important topic, which I think for the students of sociology, it is very important. And the topic which we have chosen is sociological perspective. Actually, this topic, sociological perspective, is the topic in the third semester for the course syllabus. And one who want to know the basic understanding of sociology, that they person have to be well equipped with the perspectives in sociology, because पर्सपेक्टिव जो हैं वो कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी को आपको एक अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करते हैं. सो perspectives basically means the viewpoint, the way to analyze the thing. हम किसी भी चीज को कैसे परसीव करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव. And sociological perspective referring to the perspective about the different institutions, the different things, the different components of the society, and how we are perceiving the different components, that is called as the sociological perspectives. So sociology as a subject that has emerged in 1839, and the father of sociology is Auguste Comte. He was actually a French sociologist. तो उन्होंने 1839 में एक बुक लिखी थी, पॉजिटिव फिलॉसफी. इस बुक के सिक्स वॉल्यूम्स हैं, और इस बुक में उन्होंने फर्स्ट टाइम बात की कि हमें एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए जिसमें हम सोसाइटी को स्टडी करें, सोसाइटी की साइंटिफिक एनालिसिस के बारे में हम सोसाइटी को जानने की कोशिश करें. सो अकॉर्डिंग टू अगस्ट कूम, हम सोसाइटी को साइंटिफिक तौर तरीके से बेहतर समझ सकते हैं, एंड उसका यूज हम कहीं ना कहीं सोसाइटी को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं. सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी. तो यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी. देयर इज वन मोर थिंकर, इमाइल दरकीम. ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी. सो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, there is one thing that they must know, that Auguste Comte is known as father of sociology and Emile Durkheim is known as father of modern sociology. So what is the difference? So the difference is Auguste Comte was the first person who says that we can do the scientific study of society, and Emile Durkheim was the person who made field work or the field study, and through field study he tried to tell us how we can make scientific study more purposeful. So on one side अगस्ट कुम ने हमें साइंटिफिक अप्रोच को यूज करने की बात की है, बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इमाइल दुर्कीम ने किया. सो हम इमाइल दुर्कीम को एक स्टेप आगे मानते हैं फ्रॉम अगस्ट कुम. So that's why Auguste Comte is known as father of sociology and Emile Durkheim is father of modern sociology. So these are a little bit about the basics of sociology. So sociology is coined of two words, that is socio and logi. Socio is a Latin word and it means society. Logos means study of. So the scientific study of society is called as sociology. So before the term sociology, अगस्ट कुम के अकॉर्डिंग हम एक नाम रख सकते थे, that was social physics. Why he has taken the term social physics? Because he believed that कि इस सब्जेक्ट में हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे, एंड साइंस उस टाइम पे जब इस सब्जेक्ट की शुरुआत हो रही थी, तो उस टाइम पे अलग अलग साइंसेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी. फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड अदर फिजिकल साइंसेस, दे वर वेरी मच प्रमोटेड एट दैट टाइम. तो अगस्त कुम ने ये देखा कि क्यों ना हम जो सब्जेक्ट बना रहे हैं उसको भी हम कहीं ना कहीं साइंस के कंपैरिजन में लेके चलें. सो दैट्स व्हाई ही फेल्ट दैट कि हम इस नए सब्जेक्ट का नाम साइंसेस से मिलता जुलता रखें. सो ही कॉइन्ड द टर्म सोशल फिजिक्स. बट लेटर ऑन ही फाइंड आउट कि हम सोशल फिजिक्स की बजाय एक बेटर नेम सजेस्ट कर सकते हैं, एंड दैट नेम वाज सोशियोलॉजी. देन जो हम शुरुआत के थिंकर्स देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द थिंकर्स वी ऑल नो दैट एवरीवन हैज ए व्यू पॉइंट. हर किसी का एक चीजों को देखने का नजरिया होता है.
सो जो स्टार्ट के जो थिंकर्स थे, their viewpoint, their perspective, that was different from the modern time thinkers. So we can say that there is a wide range of perspective which we can find in sociology as a discipline. So we can divide the different thinkers into two categories, classical and contemporary. So I will use the blackboard now. So broadly, we can divide the thinkers into two categories, classical and contemporary thinkers. So for a basic understanding, we can say this: classical thinkers are those thinkers which are also known as the founders of sociology. Those thinkers which were very prominent during the initial years of study of the subject of sociology. तो क्लासिकल थिंकर्स में हमारे अलग अलग थिंकर्स आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल, देयर इज अगस्ट हुम, who is also known as father of sociology. There is Emile Durkheim. There is Karl Marx. There is Herbert Spencer, and many more. These thinkers are also known as founders of sociology. These thinkers have given an elaboration about how sociology as a subject can be studied, how we can make this subject a better subject. So these are known as the founders of sociology. We can add one more thinker in it, that is Max Weber. Then contemporary thinkers are those thinkers who are of modern thinking. We can say who are talking about the modern issues, the contemporary issues which we are finding nowadays. So we can say the thinkers of the primitive years of sociology, they are classical thinkers, and the thinkers who are of modern time, they are the contemporary thinkers. So we can divide the perspectives or the philosophy which have been given by different thinkers into different categories. But now we will discuss only the philosophies which are given by the classical thinkers, or the perspective which were used by classical thinkers only. So broadly we can divide the perspectives, because शुरुआत के thinkers की thinking कुछ और थी, वो चीजों को अलग तरीके से perceive करते थे, और आज के thinkers चीजों को एक different तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. So we can divide them into broadly three categories. So sociological perspectives, there are three categories. First is functional or functionalist perspective. Second one is conflict perspective. And the third one is interactionist perspective. So broadly, all the perspectives can be divided into these three categories: functionalist, conflict, and interactionist. And these all our perspectives are used by classical thinkers. आज के जो contemporary thinkers हैं, they are one step ahead of these perspective. हम उनके perspective की बात नहीं करेंगे. So functionalist perspective, this is one of the oldest perspective. तो शुरुआत के जो thinkers थे, maximum they were of this kind of viewpoint. They try to analyze the different institutions from which our society is comprised of. वो उसको इस नजरिए से देखने की कोशिश करते थे. तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. So functionalist perspective is to having a viewpoint from a functional aspect.
ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो एक वर्ड आता है दैट इज फंक्शन. तो functionalist perspective can be analyzed through the word function. Okay, सबसे पहले what do you mean by function? function क्या है? वर्ड हमने बहुत बार सुना है और उसके अलग अलग मतलब हो सकते हैं. तो द फर्स्ट वन इज फंक्शन इज रेफरिंग टू एनी इवेंट. ठीक है, अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं दैट वी आर विटनेसिंग एनी फंक्शन. ठीक है, कोई भी जैसे घर में शादी है, घर में कोई फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, तो दैट इज ऑल्सो फंक्शन. बट सोशियोलॉजिकली अगर हम फंक्शन वर्ड की समझने की कोशिश करें तो फंक्शन विल बी रेफरिंग टू द वर्क. फंक्शन का मतलब है काम. ठीक है, तो काम और वर्क दैट इज फंक्शन. तो जो शुरुआत के थिंकर्स थे दे फोकस ऑन द वर्क. नाउ जब सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट की शुरुआत हुई तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे शुरुआत के थिंकर्स के लिए था लाइक सोसाइटी क्या है? व्हाट इज सोसाइटी? ठीक है, वी ऑल नो सोसाइटी इज कंप्राइज्ड ऑफ इंडिविजुअल और हम सब लोग सोसाइटी में रहते हैं, है ना. तो देयर वर सम बेसिक क्वेश्चंस. सोसाइटी क्या होती है? व्हाट इज सोसाइटी? हाउ सोसाइटी मूव ऑन? सोसाइटी आज की नहीं बनी है, सोसाइटी सदियों से चलती आ रही है. वो क्या चीज है जिसकी वजह से सोसाइटी इज मूविंग फॉरवर्ड? अभी भी है, आगे भी चलेगी एंड इट विल मूव ऑन. तो वो क्या चीज है जिसकी वजह से सोसाइटी इज कांस्टेंट और सोसाइटी इज मूविंग ऑन? How the different parts of society or we can say the different contributors of society वो कैसे मिलके आगे बढ़ते हैं? ठीक है, तो how what is the thing which is uniting the different components of the society? So these were the some of the basic questions जो शुरुआत के thinkers के दिमाग में थे. और हम बात कर रहे हैं कि शुरुआत के thinkers they were of functional perspective. So they had the question कि सोसाइटी किससे बनी है, कौन सी चीजें इसको बनाती हैं, कौन सी चीजें इसको आगे लेके जाती हैं, why it is not declining, क्यों खत्म नहीं हुई, क्यों आगे जा रही है. तो these were the some of the basic questions. तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए अलग अलग थिंकर्स आगे आए एंड दे केम विद द व्यू पॉइंट कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी इज हैविंग ए स्ट्रक्चर. सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर होता है. What do you mean by structure? Structure means, for example, something which has a certain form. Like everything has a structure. चाहे मैं इस रूम की बात करूं तो रूम का भी एक स्ट्रक्चर है. There are the walls, there are the roofs, there are the we can say the windows, है ना. तो अलग अलग चीजें हैं इस रूम में जो इसका एक स्ट्रक्चर बनाती हैं. तो एवरीथिंग इट हैज ए स्ट्रक्चर. चाहे वो एक इंसान की बात करें तो इंसान के एक स्ट्रक्चर है ना. हमारी बॉडी में भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जो मिलके हमारी बॉडी को बनाती हैं, एक डेफिनेट शेप देती हैं. तो वी कैन से वी हैव ए स्ट्रक्चर. चाहे वो प्लांट की बात है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो मिलके प्लांट को एक डेफिनेट शेप देते हैं. तो वी कैन से प्लांट ऑल्सो हैज ए स्ट्रक्चर. आप किसी गाड़ी की बात करो, इट ऑल्सो हैज ए स्ट्रक्चर. सो एवरीथिंग हैज ए स्ट्रक्चर. लाइकवाइज फंक्शनल थिंकर बिलीव दैट सोसाइटी ऑल्सो हैज ए स्ट्रक्चर. सोसाइटी का भी एक स्ट्रक्चर होता है. देन how this structure is made up of? This structure is made up of different parts. ये स्ट्रक्चर अलग अलग पार्ट्स की वजह से बनता है. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज ए ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं. देयर इज हार्ट, देयर इज किडनी, देयर इज लीवर, देयर इज स्टमक, देयर इज हेड, देयर इज आईज, वी कैन से देयर इज आर्म, देयर आर लेग्स. अलग अलग पार्ट्स हैं और ये सब पार्ट्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. Now, how they are linked to each other? They are linked in a definite pattern. अलग अलग पार्ट एक स्पेसिफिक तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज ह्यूमन बॉडी. तो अगर ह्यूमन बॉडी है तो हर किसी का सर ऊपर है, हर किसी के आर्म्स जो हैं शोल्डर के साथ हैं, हर किसी की लेग्स जो हैं वो बॉटम में है. ऐसा नहीं है कोई इंसान का हेड ऊपर है, लेग्स नीचे, हेड डाउन है, लेग्स ऊपर है, ऐसा नहीं है. एवरीवन हैज ए प्रॉपर स्ट्रक्चर और सबका एक डेफिनेट पैटर्न है.
all are united, all are coordinate, all are combined together in a proper sequence. ठीक है? अब now they are saying हर किसी पार्ट का एक फंक्शन है. Every part has certain function. ठीक है? They are saying society is like in, we can say society has a structure, society has different parts, society different parts are linked together in a definite pattern and all parts have certain function. ठीक है? Now they are saying like अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो what functional thinker says, this is for example society. Now there are different parts of society. For example, there is family. This is one of the important institution. There is religion. There is political institutions. There is economic institutions. There is, we can say, educational institutions. There is marriage institution, है ना? और बहुत सारे institution. तो society अलग-अलग चीजों से बनी है. And all these different parts, they are linked to each other. Family है तो family का religion से भी रिश्ता है. Religion है तो उसका politics से भी कोई connection है. Politics है तो उसका economy से भी connection है. So all different parts, they are connected to each other. वो एक दूसरे से connected हैं और हर part का कोई function है. For example, family. Family has certain function. उसका कोई काम है. Religion has certain function. Religion give a kind of peace during different situations in your life, and it is important. Politics has certain role in the society, है ना? तो हर part का एक function है. हर part अपना अपना काम कर रहा है. Every part is doing their own function. And they are expert in it. हर पार्ट अपने काम में एक्सपर्ट है. जो काम एक पार्ट कर सकता है वो दूसरा पार्ट नहीं कर सकता. जो काम मेरी फैमिली कर सकती है वो मैरिज इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता, वो रिलीजन नहीं कर सकता, वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता. तो एवरी पार्ट हैज सर्टेन फंक्शन और एवरी पार्ट इज एक्सपर्ट और हैव, वी कैन से, एफिशिएंसी इन देयर फंक्शन. नो वन कैन रिप्लेस देयर फंक्शन. ठीक है? तो और अब सबका अपना अपना काम है, बट इसके साथ सबका एक दूसरे के काम में भी इंटरफेरेंस है. ऑल पार्ट्स आर वर्किंग टुगेदर. हर कोई अपना काम कर रहा है, बट हर कोई दूसरे के काम के साथ भी कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास फैमिली की इंस्टीट्यूशन है जिसका कुछ वर्क है, फैमिली इज डूइंग देयर वर्क वेरी एफिशिएंटली, बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि फैमिली इज नॉट कनेक्टेड टू, वी कैन से, पॉलिटिक्स. मान लो आज स्ट्राइक हो जाती है ना, या कोई भी पॉलिटिकल इशू हो जाता है, तो उसका असर फैमिली पे भी पड़ेगा, उसका असर एजुकेशन सिस्टम पे भी पड़ेगा, उसका असर हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ेगा. रिसेंटली वी हैव सीन, फॉर एग्जांपल, आई विल से, किसी बहुत बड़े बिलियनियर के शेयर्स गिर गए एकदम से, है ना. तो व्हाई दैट हैपन? ऐसा नहीं है कि उसको इकोनॉमी लॉस उसकी वजह से हुआ है. दिस इकोनॉमिक लॉस, जो शेयर उसके गिर गए, दैट इज बिकॉज ऑफ सम, कोई रिपोर्ट आई है ना, जिसकी वजह से ऑल डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैव अफेक्टेड, एंड अल्टीमेटली अगर उसके शेयर्स गिरे हैं तो इकोनॉमी पे भी असर हुआ है, उसका असर पॉलिटिक्स पे भी हुआ है, उसका असर ऑन द वे पूरी सोसाइटी पे भी हुआ है. तो बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यूक्रेन क्राइसिस अभी हम देख रहे हैं, तो यूक्रेन में जो इशू हुआ है, उसका असर हर किसी कंट्री के पॉलिटिक्स पे पड़ेगा, उसका असर हर किसी कंट्री के इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पे पड़ेगा, उसका हर किसी कहीं ना कहीं रिलीजन से भी लेना देना है. तो वी कैन से ऑल डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, दे आर डूइंग देयर वर्क, बट अल्टीमेटली एक दूसरे का काम जो है वो एक दूसरे को भी अफेक्ट करेगा. तो वी कैन से ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ओके, so this is function. Okay, now functional thinker says कि society में there is always a kind of stability. हमेशा society में stability बनी रहती है. There is a kind of order, or society is always in a organized
स्टेट। सोसाइटी हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती है, हर पार्ट अपना काम करता है और हर चीज बड़ी स्मूथली चलती है। तो इन अदर वेज दे आर सेइंग देयर इज नो प्रॉब्लम। वो कहते हैं हर चीज नॉर्मल चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट सम टाइम इट हैपेंस कि छोटी मोटी कुछ स्मॉल प्रॉब्लम्स अकर, थोड़ी बहुत कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट अकॉर्डिंग टू फंक्शनल थिंकर्स दीज प्रॉब्लम्स कैन बी कोप अप बाय सोसाइटी इटसेल्फ। सोसाइटी इतनी एफिशिएंट होती है कि इन प्रॉब्लम्स को वो खुद ही सॉल्व कर सकती है। सो देयर इज नो नीड टू मेक ए चेंज इन द सोसाइटी। तो फंक्शनल थिंकर्स के अकॉर्डिंग everything is okay, everything is good, there is no need of any change and everything is stable, हर चीज stable है। so this is called as functional perspective। so functional thinkers are focusing on the positive aspects of society। okay, they are saying this, for example they are saying there is family, so family as an institution they are existing in the society since ages, सदियों से चलता आ रहा है, अभी भी है, आगे भी चलेगा। सो फॉर देम दे बिलीव दिस कि अगर फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन है तो दैट मीन्स दे हैव सम फंक्शन, उसका कोई काम है, तभी वो है। जिस दिन फैमिली अपना काम करना रोक देगी या फैमिली परफॉर्म करना बंद कर देगी, देन फैमिली विल नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, फैमिली विल स्टॉप। सो अकॉर्डिंग टू हिम हम देख सकते हैं कि जितने भी इंस्टीट्यूशन आज के टाइम पे हमें दिख रहे हैं, इनका कोई ना कोई काम है, दैट्स व्हाई दे आर देयर, और दैट्स व्हाई दे आर प्रमोटिंग कि इनको ऐसे ही रखो, इनको चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, एवरीथिंग इज ओके अकॉर्डिंग टू फंक्शनल थिंकर्स। नाउ द इंपॉर्टेंट फंक्शनल थिंकर्स आर, फर्स्ट यू कैन राइट अगस्ट कुम्ब। तो अगस्ट कुम्ब फंक्शनल पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज हर्बर्ट स्पेंसर एंड थर्ड प्रोमिनेंट इज इमाइल दर्कीम। So these three thinkers, they focus on the functional aspects of the society. They focus on that things has to be in a stable manner. तो इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं अगस्त कुम्ब के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, what are the major contribution is the very important is the concept of positivism। अगस्त कुम्ब का सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म, जिसमें उन्होंने बात की है द लॉ ऑफ थ्री स्टेजिंग। देन द नेक्स्ट वन इज हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जो है ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड एंड उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एनालॉजी। Organic analogy is the concept by Herbert Spencer, as well as he has given one more important concept, organic analogy, and second one is social Darwinism. Okay, so these are the two concepts which are given by Herbert Spencer. Then next जो thinker थे हमारे इमाइल दर्कीम, he is also a functionalist। तो इमाइल दर्कीम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ही हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ द विजन ऑफ लेबर, द विजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। सेकंड ही हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ सुसाइड। थर्ड ही हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ, इमाइल दर्कीम का जो थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज
the elementary forms of religious life. Fourth important book by Imam Durkheim is The Rules of Sociological Method. So these four are the important concepts by Imam Durkheim, as well as these are the four books by Imam Durkheim. So these books all also focused on the different aspects of society with a functional perspective. So this is all about functional perspective. Now, the second most important perspective जो हम sociology में पढ़ते हैं, that is the conflict perspective. तो conflict perspective जो है दो वर्ड से बना है. One is perspective. Perspective is viewpoint, how to analyze the things, how to perceive the different institutions in the society. And second one is conflict. So what do you mean by conflict? Conflict means problem. Conflict means there is something which is not normal, something which is not okay. That means कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है. So they are focusing on the problem. ठीक है. So conflict का usually मतलब जो हम देखते हैं लड़ाई है ना. So conflict thinkers जो हैं, these are the second main category of thinkers, जो कि शुरुआत के thinkers में आते हैं. And they focused on कि their viewpoint is different from the functional thinkers. According to them, functional thinkers, they are saying this कि society is normal, everything is okay, every institution is playing their role and कोई problem नहीं है और जो चीजें जैसी हैं उसको वैसा ही रहने दो. तो functional thinkers, they are always proposing and they are promoting the stability, and they are not focusing on any problem, any change. But there is a thinker and he's a very important thinker. तो see, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी. The name of this thinker is Karl Marx and he was from Germany. तो Karl Marx जो है, he is not a sociologist. There are the two terms. One is sociologist and second one is social thinker. So Karl Marx is a social thinker and he is not a sociologist. We can say he is a sociologist, but in proper term, he is not a sociologist, but he is a social thinker. So I want to add here, what is the difference between the two? Sociologist is the person who is focusing on different aspects of society. They are analyzing the society with a one perspective, I can say this. But social thinker is any person जो scientific तरीके से अलग अलग चीजों के बारे में बोलता है. For example, Karl Marx, history, he is also a historian. हिस्ट्री में भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं. इकोनॉमी में भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं. हम उनके बहुत सारे टॉपिक्स इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं. हम उनके बहुत सारे टॉपिक्स पोल साइंस में भी पढ़ते हैं. पॉलिटिकल उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, है ना. As well as he is talking about various social issues also. So he is the person who is not confined only to sociology, but he is the person who is giving his opinion or his study in different subjects. So we can say he has a broader perspective or he is a person with a broader kind of analysis. So that person जिसका बहुत सारे अलग-अलग concepts, अलग-अलग sciences में हमें मिलता है, that person can be called as a social thinker. So social thinker is a broader term than sociology. ठीक है. और a sociologist. कोई अगर इकोनॉमी पढ़ता है, that is economist. कोई अगर हिस्ट्री पढ़ता है, that is historian. But अगर किसी के कॉन्सेप्ट अलग अलग साइंसेस में आते हैं, then that is called as social thinker. So Karl Marx is a social thinker.
तो कार्ल मार्क्स जो है, he was a German philosophy and he was the first person who was the main proponent of the conflict perspective. तो हम इनको बोल सकते हैं कि कार्ल मार्क्स जो हैं, he was the one of the main protagonist of or the proponent of conflict theory. तो कार्ल मार्क्स जो हैं ये कन्फ्लिक्ट थ्योरी को प्रपोज करते हैं. सो कार्ल मार्क्स की इस कन्फ्लिक्ट थ्योरी में इन्होंने बहुत सारी चीजें क्रिटिसाइज की हैं फंक्शनल थिंकर्स की. ठीक है, तो ही सेज दिस लाइक, अगर फंक्शनल थिंकर्स कहते हैं, लाइक फंक्शनल थिंकर्स आर सेइंग सोसाइटी इज स्टेबल, सोसाइटी इज ओके, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं सोसाइटी में, उनको कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उनका रोल कोई और नहीं निभा सकता, एंड सोसाइटी जो है जैसी है उसको वैसा ही रखना है. And functional thinkers, they are ignoring the problem aspects of society. So Karl Marx for the first time said ऐसा नहीं है. आप किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करो, चाहे वो मैक्रो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो माइक्रो इंस्टीट्यूशंस हैं, the smallest institution or the smallest unit of any society is family. So according to Karl Marx, अगर आप फैमिली को ही देखें तो within the family also there are the different parts, डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो हमारी फैमिली को बनाती हैं, बट बाहर से वी कैन से दैट एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल, एवरीथिंग लुक फॉर्म वी कैन से स्टेबल, बट अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ऐसा नहीं है. देयर आर सम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम विच कंटिन्यूज इन फैमिली ऑल्सो. ठीक है, तो वो कहते हैं कि चाहे आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में भी प्रॉब्लम है, वो हमें दिखती होंगी, बट ही सेज बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बाहर से हमें नॉर्मल लगते हैं एंड दे सीम्स दैट दे आर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूटिंग, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, बट अगर हम डीपली स्टडी करें तो हर इंस्टीट्यूशन में या हर जगह में आपको प्रॉब्लम दिखेगी. लाइक ही सेड अबाउट फैमिली में भी इफ देयर आर हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन एंड अदर मेंबर्स इन द फैमिली, तो ऐसा नहीं है एवरीथिंग इज ओके. बहुत बार अप्स एंड डाउन आते हैं, बहुत बार प्रॉब्लम्स आती हैं. एंड विद इन द फैमिली इंस्टीट्यूशन ही इज सेइंग देयर इज जेंडर इनइक्वालिटी, one partner is getting more advantage as compared to the other partner, तो conflict वहां पे भी होता है, but over and all family looks normal. Then he says about religion, he says religion is also one of the very important institution of any society. एंड अगर हम रिलीजन की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग रिलीजन इज एन ओपियम ऑफ मासेस. कार्ल मार्क्स कहते हैं रिलीजन इज लाइक एन ओपियम ऑफ मासेस. ओपियम मीन्स इट इज ए ड्रग. तो लाइक ए ड्रग, अगर आप किसी ड्रग को लेते हैं तो आफ्टर दैट यू लूज योर सेंसेस, है ना, आप अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर पाते, आप यू डोंट फाइंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. तो अकॉर्डिंग टू हिम रिलीजन एक ओपियम की तरह, एक ड्रग की तरह आम लोगों पे एक्ट करता है. आम लोग सही और गलत बहुत बार अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ओपियम, रिलीजन एज एन ओपियम, लोग सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते. जैसा ही रिलीजियस इंस्टीट्यूशन लोगों को बोलेंगे वो वैसा ही फॉलो करेंगे और वो कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे. सो इन दिस वे ही सेज religion is an opium of the masses. So he says, yes, functional thinker said, yes, religion is very important, they plays very important role, but according to Karl Marx, yes, it may be important, but sometimes religion create conflict also, religion create problem also. बहुत सारे हम रॉइट्स देखते हैं, बहुत सारी हम रिलीजन के बेसिस पे लोग एक दूसरे को मार देते हैं, या किलिंग्स होती हैं, या मास डिस्ट्रक्शन होती है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन होती है, या लोगों को प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन होती है. दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज. सो फॉर हिम दैट every time we cannot say this is religion is playing positive role, sometimes it is also playing a negative role. Likewise, he's saying family every time is not okay,
Sometimes it is playing negative roles also. Then he says किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करें आपको प्रॉब्लम दिखेगी, बट उस प्रॉब्लम को देखना दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. कार्ल मार्क्स सेज, फंक्शनल थिंकर्स ने बोला कि सोसाइटी इज नॉर्मल, सोसाइटी में जो चीज जैसी है वैसी रखें, बट कार्ल मार्क्स सेज अगर हम हमेशा नॉर्मल या पॉजिटिव चीजों को ही देखेंगे तो नेगेटिव चीजें वैसी ही रहेंगी. तो अगर आप सोसाइटी को एक बेटर सोसाइटी बनाना चाहते हैं, so why not we focus on the negative side first. पहले प्रॉब्लम्स को देखें. अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो अल्टीमेटली पॉजिटिव तो हमारे पास है ही है, सो अल्टीमेटली एक बेहतर सोसाइटी बन सकती है. सो दे आर फोकसिंग मोर ऑन द प्रॉब्लम्स. ओके, so conflict perspective, they are focusing on problems in the society. They are focusing on negative aspects in a society. They are also promoting change. वो चेंज की बात करते हैं, वो कहते हैं जो चीजें हैं उनका एक बेटर ऑप्शन भी हो सकता है, तो हमें समटाइम चेंज भी देखनी चाहिए. चेंज इज कैन बी गुड. So according to him, change is more normal than stability. तो conflict thinkers कहते हैं चेंज ज्यादा दिखती है, प्रॉब्लम्स हमें ज्यादा दिखती हैं as compared to the normal things. तो कार्ल मार्क्स conflict perspective को follow करते हैं, and the very important concept which is given by the Karl Marx is the concept of dialectical materialism. कार्ल मार्क्स के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. So dialectical materialism and historical materialism. Here I want to add that Karl Marx के according what is the main source of problem in any society? वो क्या चीज है जो conflict लाती है? तो कार्ल मार्क्स ने थ्रू आउट हिस्ट्री स्टडी किया, अलग अलग सोसाइटीज को स्टडी किया, एंड देन ही केम टू द कंक्लूजन दैट वन थिंग व्हिच वाज कॉमन इन ऑल द सोसाइटी दैट वाज मनी और इकोनॉमी और द क्लास. So according to Karl Marx, in every society one thing which was common was economy, class and or the money. So पैसा हर सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रहा है. So according to him, it is the money which define the classes or which defines the category. हमेशा हर सोसाइटी में पैसों के हिसाब से कैटेगरीज बनेंगी. So according to him, in every society it is the money which is very important, and on the basis of money we can divide the people into two categories. One is rich and second one is poor. Rich are the people who can be called as haves, जिनके पास है, जिनके पास resources पे control है, these people will be called as rich people. And second category is poor. Poor are also can be called as have not. This is that category of people जिनका चीजों पे कंट्रोल नहीं है. ओके, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं रिच आर ऑलवेज स्मॉल इन नंबर. हर सोसाइटी में अमीर लोग कम होंगे, गरीब लोग ज्यादा होंगे. पुअर आर मोर इन नंबर, बट रिच पीपल हैव कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. जो भी चीजें हैं उन पे कंट्रोल रिच लोगों का होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं, इन कंटेम्पररी टाइम्स वी कैन से रिलायंस है हमारे पास, या अलग अलग हमारे पास कैपिटलिस्ट हैं. रिलायंस की बात करते हैं, देयर इज वन फैमिली एंड वी कैन कॉल दे आर अपर क्लास, है ना, more than not middle class, they are the upper class, richest persons in the world, one of the richest person in the world, that is the Reliance family we can say. तो ये थोड़ी से लोग हैं, एक घर के लोग हैं, and they have control on we can say the maximum of means of production, है ना, उन पे इनका कंट्रोल है. and there are number of workers all over the India
जो इस इनके अंडर काम करते हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अंबानी फैमिलीज वी कैन से. So rich people, they are few in number, and poor people, they are maximum in number, बहुत ज्यादा. And then he says, अमीर लोग हमेशा अपना एक कंट्रोल बना के रखते हैं. अमीर लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो चीज जैसी बनी है वैसी ही रहे. They always plan to ensure that there is no unity between the people in the poor category. अमीर लोग हमेशा ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएंगे ताकि पुअर लोग हमेशा उनके कंट्रोल में बने रहें. एंड ही सेज जो पुअर लोग हैं वो बहुत मेहनत करने के बाद भी कभी भी रिच को अचीव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटजीज विच आर अडॉप्टेड बाय द रिच पीपल. सो ही सेज दिस कि the rich and the poor, they are never equal. There is a kind of inequality between them, and due to this inequality they always are antagonistic to each other. वो हमेशा एक दूसरे के एंटी होंगे. Rich people believe that we have to maintain our richness, or we can say the hegemony. So rich people, they have a we can say एक उनके मन में poor लोगों के लिए negative feelings होंगी, and जो गरीब लोग हैं उनके मन में अमीरों के लिए negative feelings होंगी. So they always have a problem with each other. So this is called as conflict. So there is always a condition of conflict between the rich and poor according to Karl Marx. So Karl Marx कहते हैं अगर हम पूरी अपनी हिस्ट्री भी देखें तो पैसा ही इंपॉर्टेंट था, पैसों से ही लोगों के रिश्ते बनते हैं. He says it is the money which decide everything. चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपके किसी इंस्टीट्यूशन के साथ अलाइनमेंट है, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएं, इट मैटर्स आप इकोनॉमी के हिसाब से आप कहाँ स्टैंड करते हैं, है ना. So he says there is always two category, rich and poor, and both are always conflict. We cannot say हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ में चलते हैं. There is always problem between the two. So this is conflict. So according to him, the class which is the most important thing. So this is called as dialectical materialism. इसको हम बोलते हैं dialectical materialism. Dialectical means two opposite conditions or two opposite situations. Dia means two, lectical means conditions. ठीक है? So rich and poor are two situations, and rich and poor are always opposite to each other, right? Second is historical materialism. He is talking about history, and he's saying in every society material or paisa or money, that is important. So this is called historical materialism. अब इसमें historical materialism में he has given 5 stages. So these 5 stages are ancient society. No, first one is primitive society. Second is ancient society. Third is feudal society. Fourth one is capitalist society. And the last one is socialist society. Okay. So these 5 stages have been given by Karl Marx in his concept of historical materialism. And he says in every stage, these are the different stage. Every stage, it is the money which was important, and on the basis of the control over the money, there are relation between the people, and due to which there is conflict. ठीक है, तो हम इसको अभी डिटेल में नहीं जाएंगे. So the important thinkers of conflict perspective, आप इसको नोट कर सकते हैं. Important thinkers जो इसको फॉलो करते हैं conflict perspective को, these are Karl Marx. Second one is Dahrendorf. Third one is Lewis-Hauser. So all these thinkers, they are focusing on the conflict perspective in the society, right?
So the last thing perspective is interactionist perspective. इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, तो इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव को हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव की कैटेगरी में भी लेते हैं. इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव जो फंक्शनल एंड कन्फ्लिक्ट के बाद आता है. तो इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट फ्रॉम दीज टू थिंग पर्सपेक्टिव्स. सो इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है, they are not focusing on the positive aspect, they are not focusing on the negative aspect like conflict thinkers ने जो बोला है. They are focusing on the interaction. तो conflict perspective सोसाइटी में चेंज की बात करते हैं, फंक्शनल पर्सपेक्टिव सोसाइटी को मेंटेन करने की बात करते हैं, बट इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव बात करते हैं, दे आर सेइंग कि the main we can say the basics of any society. देखो सोसाइटी जो है किससे बनी है? इंडिविजुअल से, लोगों से बनती है सोसाइटी, है ना. तो दे सेज दिस कि लोग वो क्या चीज है जो लोगों को जोड़ के रखती है. What is the thing which make connection between the people? So they says it is the interaction. It is through interaction only that people come close to each other, and when they come close to each other they make groups and ultimately हमारी society बनेगी. Okay, so they are saying कि society में अगर हम बात करते हैं बनती कैसे है सोसाइटी. देखो अभी यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूंगी. देयर आर टू काइंड ऑफ theories. One is macro theory and second one is micro theory, right? Macro perspective and micro perspective. So functional and conflict perspective, these are called as macro perspective. Why? Macro means large. Okay, macro means they are focusing on broader aspects. Okay, larger aspect. Okay, so larger aspect means they are focusing on complete institution, or we can say the complete society. They are saying about the whole society. ठीक है. तो मैक्रो पर्सपेक्टिव में फंक्शनल और कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव आते हैं. हमने पढ़ा फंक्शनल पर्सपेक्टिव, दे आर सेइंग सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स हैं, हर पार्ट का काम है ना. कन्फ्लिक्ट वालों ने भी बोला कि ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, पार्ट्स हैं, बट प्रॉब्लम है. इन्होंने बोला कि प्रॉब्लम नहीं है. तो दैट मीन्स बोथ आर फोकसिंग ऑन कंप्लीट सोसाइटी, पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं. ओके, तो दैट्स व्हाई इन दोनों पर्सपेक्टिव को हम क्या बोलेंगे? मैक्रो पर्सपेक्टिव. अब कुछ टाइम के बाद नए थिंकर्स आए, दे सेड दैट कि पूरे को एक स्टार्ट से पढ़ना दैट विल नॉट गिव यू अ बेटर इनसाइट. आपको चीजें इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आएंगी. तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. हम क्यों ना चीजों को शुरुआत से समझने की कोशिश करें. अगर हम एकदम से पूरी सोसाइटी में आ जाते हैं, पार्ट्स को पढ़ते हैं और उनके कनेक्शन को समझते हैं, तो क्यों ना इसकी बजाय हम एक नए तरीके से चीजों को समझें. दैट इज कि क्यों ना हम सोसाइटी की वेरी फाउंडेशन से सोसाइटी को समझने की कोशिश करें. ओके, तो दिस इज माइक्रो पर्सपेक्टिव. तो ये नए थिंकर्स थे माइक्रो पर्सपेक्टिव वाले, एंड दिस इज सोसाइटी का बेस इंडिविजुअल है, एंड क्यों ना हम इंडिविजुअल से समझना शुरू करें कि कैसे इंडिविजुअल्स कनेक्ट होते हैं और ड्यू टू देयर कनेक्शन कैसे सोसाइटी बनती है. राइट. ऑन द अदर हैंड मैक्रो पर्सपेक्टिव वालों ने बात की कि कैसे सोसाइटी बनती है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन. So they are ignoring the individual. According to interactionist perspective, अगर हम बेसिक यूनिट को ही इग्नोर कर देंगे तो हमें बाकी चीजें कहाँ समझ में आएंगी.
एंड इन लोगों ने बेसिक को इग्नोर किया, इन्होंने इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस को समझा ही नहीं। तो दैट्स व्हाई इंटरेक्शनिस्ट थिंकर्स ने फंक्शनल और कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स को क्रिटिसाइज किया एंड दे केम विद द व्यू पॉइंट दैट हमें बेस से शुरू करना है, कैसे सोसाइटी पहले बनती है, पहले हमें ये समझना है। अगर हम ये समझेंगे देन उसके बाद सोसाइटी कैसे काम कर रही है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नॉर्मल है, हम उन चीजों पे फोकस करें। तो दिस इज कॉल्ड एज, दैट्स व्हाई माइक्रो पर्सपेक्टिव इज इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, interactionist perspective is micro perspective. They are focusing on micro points of the society, and the micro point of the society is individual, right? So this is the difference between functional, conflict and interactionist perspective. Now interactionist perspective के characteristics, they are studying at the micro level. They are focusing on individual and how they are connected. वो क्या चीज है जो लोगों को कनेक्ट करती है? So according to them, this is the interaction which connects the people. Okay, so this is interactionist perspective. Now important thinkers of interactionist perspective is Max Weber, and second one is Erving Goffman. Okay, so अब मैं थोड़ा सा इसमें I would like to throw light some on the, थोड़ा सा इनका contribution हम देखते हैं. First is Max Weber. Max Weber was the first person जिन्होंने broader aspect की भी बात की है, as well as he has talked about interactionist perspective. तो Max Weber को we used to take him in between micro and macro perspective. He was the first person जिन्होंने मैक्रो और माइक्रो दोनों को यूज किया है टू एनालाइज द सोसाइटी. So he has given a very important concept, and this is the concept of social action. So according to Max Weber, it is the social action which is very important to understand within the society. Okay, so what is social action? Social action is, we can take, it is comprised of two words, social and action. Social is referring to society and action is referring to act. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ टर्म एक्शन एंड सेकेंड टर्म इज सोशल एक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई टू मेक इट मोर क्लियर, आई टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, I am in the class and I am delivering my lecture. Okay, but students are not listening to me. Or if I am asking some questions, तो students मुझे जो आंसर दे रहे हैं that is not relevant up to the topic which I have chosen. ठीक है, तो मैंने कोई बात आपसे की है but आपका जो जवाब है वो कुछ और आ रहा है. This is not up to what I am asking you. So this is called as action. ठीक है, that means आप मेरी चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं एंड आप अपने हिसाब से चीजों को परसीव करके मुझे आंसर दे रहे हैं, एंड दिस इज नॉट अप टू द टॉपिक जो मैं बोल रही हूँ. So this is just called action, right? इसमें I can take one more example. For example, I am coming to college. मैं कॉलेज में आती हूँ, सुबह घर से आती हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ. I am coming to college. I am marking my attendance, है ना? And I am doing my other work in the college. तो मैंने ये जो भी चीजें पूरा दिन की, इसका किसी और से कुछ भी लेना देना नहीं है. इसका किसी और पे कोई भी असर नहीं हुआ. I am coming to college. I am marking my attendance. I am doing my work. इससे किसी को कोई असर नहीं हुआ. ठीक है, so this is something which I am doing and ये सिर्फ मेरे तक ही localized है. So I can say this is my action. And second is like I am taking lecture and मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है और आप अकॉर्डिंगली आंसर दे रहे हैं. मेरे बोलने से आपको कोई असर हुआ है एंड आपने अकॉर्डिंगली मुझे रिस्पॉन्स दिया है, देन इट इज कॉल्ड सोशल एक्शन, राइट? तो फर्स्ट एग्जाम्पल में आई सेड कि मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, बच्चों को समझ नहीं आया, बच्चा अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बोल रहे हैं.
तो दैट मीन्स मेरा बोलना, मेरा समझाना आप तक नहीं पहुंचा और आपका जो भी आंसर है वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है. तो दिस इज कॉल्ड एज एक्शन. एंड सोशल एक्शन इज व्हेन यू आर परसीविंग, और मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाई एंड हम दोनों में कनेक्शन बन पाया जो अकॉर्डिंग टू टॉपिक था. दैट इज कॉल्ड सोशल एक्शन. So I used to give many a time an example because बहुत सारे students जो हैं बहुत simple language में समझना ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं. So usually I used to give this example, like for example मैंने किसी को slap किया, I use this slap someone, है ना, मैंने किसी को थप्पड़ लगाया and he didn't respond, उसने response नहीं दिया, ठीक है, and that person move away. Okay, so this is just an action. Second, I slapped someone and उसने उसको देखते accordingly मुझे reciprocate किया, accordingly उसने वैसा ही मुझे response दिया, that can be injurious to me, है ना, तो उसने accordingly मुझे back slap किया, so that will be called social action, right? तो जो आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप चीजों को समझा पाते हैं एंड अकॉर्डिंगली सेम रिस्पॉन्स ले पाते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल एक्शन. तो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग विद इन सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, जो हम बिकॉज मैंने बोला दीज आर सम ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, तो जिन्होंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की शुरुआत की है, तो अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद इन द सोसाइटी टू अंडरस्टैंड इज सोशल एक्शन. कैसे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, वो क्या चीज है जो लोगों को कनेक्शन बनाती है, कैसे लोग एक दूसरे की बात समझ पाते हैं, दैट इज सोशल एक्शन. एंड अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ सोशल एक्शन आर बीइंग परफॉर्म. तो अकॉर्डिंग टू हिम विद इन सोशियोलॉजी और विद इन सोसाइटी सोशल एक्शंस आर इंपॉर्टेंट टू स्टडी. नाउ सेकेंड जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको अभी थिंकर बताया, दैट इज Irving Goffman. He is also an interactionist and इनकी philosophy भी बहुत interesting है. He is an American sociologist and he has given a very important concept, and his concept is the dramaturgical approach. Irving Goffman has given an approach which is known as dramaturgical approach. तो ड्रामाटर्जिकल अप्रोच के द्वारा अर्विंग गॉफमैन ने सोसाइटी को समझाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि कैसे हम सोसाइटी को समझ सकते हैं. तो लाइक ड्रामाटर्जिकल अप्रोच से ही हमें समझ में आ रहा है कि दे आर टॉकिंग अबाउट ड्रामा. ओके, तो ही सेज अगर आप सोसाइटी को समझ सकते हैं या समझना चाहते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक सोसाइटी इज ए ड्रामा. ही सेज सोसाइटी एक ड्रामा की तरह है, एक ड्रामा है. लाइक वी ऑल हैव सीन सो मेनी ड्रामाज, है ना, हम टीवीज में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, सो मेनी ड्रामाज आर गोइंग ऑन. तो ही सेज सोसाइटी एक ड्रामा है एंड इस ड्रामे में देयर इज ए स्टेज. जैसे हर ड्रामा में एक स्टेज होती है ना, वी कैन से इट इज अ ड्रामा और ए थिएटर. फॉर एग्जांपल ही इज आल्सो कोटिंग द टर्म थिएटर. सोसाइटी इज लाइक ए ड्रामा और ए थिएटर. जैसे एक थिएटर होता है, एक थिएटर में एक स्टेज होती है, देयर इज अ स्टेज एंड ही इज सेइंग इस स्टेज के दो पार्ट्स हैं. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस स्टेज. वन इज front stage and second one is backstage. तो ही से कि थिएटर में स्टेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फ्रंट स्टेज एंड द बैक स्टेज. व्हाट इज द बैक स्टेज, व्हाट इज द फ्रंट स्टेज? ही सेज फ्रंट स्टेज उस स्टेज का वो हिस्सा जहां पे हम आगे आके परफॉर्म करते हैं, वेयर वी आर परफॉर्मिंग. ठीक है, so that is called front stage. Backstage is that part of the stage जहां पे हम prepare करते हैं, where we are preparing to act on stage, right? So he's saying कि
लाइक एक थिएटर की दो स्टेजेस होती हैं, वैसे ही सोसाइटी में लोगों की लाइफ की दो स्टेजेस होती हैं. वन इज फ्रंट स्टेज, जहाँ पे लोग परफॉर्म करते हैं एंड हमेशा अपना बेस्ट बताते हैं. देर ऑलवेज शोइंग दैट एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, एंड वो जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वो बड़ा नॉर्मल है, उनके लिए इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है. बट इट इज ओनली द बैक स्टेज जहाँ पे वो प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पे वो अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाते हैं. एंड ही सेज कि बैक स्टेज की बातें कभी भी फ्रंट स्टेज में शो नहीं की जाती, कभी भी बताई नहीं जाती. तो लाइकवाइज हर इंडिविजुअल की दो पर्सनैलिटीज होती हैं. वन इज फ्रंट पर्सनैलिटी, जब वो आम लोगों के साथ मिलता है और हमेशा वहां पे अपना बेस्ट पोर्ट्रे करता है. एंड बैक स्टेज लाइक व्हेन वी आर इन अवर फैमिली, और अपनी फैमिली में हम जैसे हैं वैसे हम कभी भी फ्रंट स्टेज में नहीं हो सकते. तो इन द बैक स्टेज द पर्सन ऑलवेज प्रिपेयर देमसेल्व्स एंड ऑलवेज दे आर मास्किंग इन द फ्रंट स्टेज. तो दिस इज नोन एज ड्रामाटर्जिकल अप्रोच. तो अरविंद गॉफमैन ने बहुत डिटेल में इन चीजों को बताया कि किस तरीके से हम दुनिया में लोगों को समझ सकते हैं, कि किस तरीके से लोग जो हैं बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज में प्रिपेयर होके एंड सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं, जिसके बेसिस पे लोगों के रिलेशन बनते हैं एंड अल्टीमेटली सोसाइटी इज क्रिएटेड. So this all is about interactionist perspective. So with this, I conclude my lecture. So we can say this. There are three important perspectives: functional, conflict, and interactionist perspective. And ये हर कोई पर्सपेक्टिव अपने हिसाब से बहुत अच्छी चीजें हमें बताता है. बट ऑन सम पॉइंट फंक्शनल पर्सपेक्टिव को भी क्रिटिसाइज किया गया, और अदर पॉइंट conflict पर्सपेक्टिव को भी क्रिटिसाइज किया गया है. एंड इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, दे आर giving their viewpoint in their own way. So every perspective is important, but उनका जो भी चीजों को perceive करने का तरीका है, that is different. So with this, I conclude. Thank you so much.